वेलकम टू वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च, सेशन नंबर 1। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन रिसर्च कि ऑपरेशन रिसर्च कब शुरू हुआ, क्या उसकी फीचर्स हैं और फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स है। उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च की टर्मिनोलॉजी और कहाँ पर वो अप्लाई होता है, दैट मीन्स एप्लीकेशंस। देन ऑपरेशन रिसर्च जर्नल्स, ऑपरेशन रिसर्च प्रोसेस, देन ऑपरेशन रिसर्च मॉडलिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन मैथमेटिकल प्रोग्राम्स, फिजिबल ऑप्टिमैलिटी, देन पैरामीटर्स, देन क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, एंड देन सिमुलेशन, सी डिटर्मिनिस्टिक एंड stochastic analysis. And our definition of operation research: operation research, in short form called OR, is the field of how to form mathematical models for complex management decision problems and how to analyze the models to gain insight about possible solution. देखिए, ऑपरेशन रिसर्च के लिए ऑपरेशन रिसर्च हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमें ऑपरेशन रिसर्च का यूज करना होता है। और ये इसके थ्रू हम जो है एनालाइज कर पाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका क्या अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। दीज अर्ली ऑपरेशन रिसर्च वर्कर्स केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन्स। One group consisted of a physicist to physiologist to mathematicals, physicist and a surveyors. And our history of operation research: although scientists had plainly been involved in the hardware side of welfare, scientific analysis of the operational use of military resources had never taken place in a systematic fashion before the Second World War. Military personnel, often by no means stupid, were simply not trained to undertake such analysis. What such people brought to their work were scientifically trained minds used to querying assumptions, logic, exploring hypotheses, devising experiments, collecting data, analyzing numbers, etc. Many too were of high intellectual calibers. Following the end of the war, OR took a different course in the UK as opposed to in the USA. In the UK, as mentioned above, many of distinguished OR workers returned to their original peacetime disciplines. As such, OR did not spread particularly well except for a few isolated industries, iron or steels and coals. In the USA, operation research spread to the universities so that systematic training in operation research began. Operation research started just before World War II in Britain, with the establishment of team of scientists to study the strategic and tactical problems involved in military operations. तो जैसा कि आपने हिस्ट्री को सुना, सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ब्रिटेन में शुरू किया गया था और इसका जो एप्लीकेशन फील्ड था वो मिलिट्री ऑपरेशंस यानी लड़ाई के दौरान ऑपरेशन रिसर्च का यूज किया। द ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड मिलिट्री रिसोर्सेज बाय द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और जिसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है लिमिटेड मिलिट्री रिसोर्सेज का। कैसे करना है? बाय द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, दैट इज कॉल्ड OR और ऑपरेशन रिसर्च। आज के सिनारियो में भी आप देखते हैं, चाहे हम इकोनॉमिक कंडीशन लें या मैनेजमेंट कंडीशन लें,
तो सभी जगह एक ही फिनोमिना देखने को मिलता है, और वो क्या है? एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अनलिमिटेड वर्क और अनलिमिटेड वांट। देयरफॉर ऑपरेशन रिसर्च इज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू suggest the optimum way for solving the problems. So you should be clear that the growth of OR since it began, and especially in the last 30 years, is to a large extent the result of increasing power and widespread availability of computers. Most operation research involves carrying out a large number of numeric calculation. Without computers, this would simply not be possible. Manufacturers used operations research to make products more efficiently, schedule equipment maintenance, and control inventory and distribution process. And success in these areas led to expansion into strategic and financial planning, and into such diverse areas as criminal justice, education, meteorology, and communications. A number of major social and economic trends are increasing the need for operation researchers. In today's global marketplace, enterprises must compete more effectively for their share of profits than ever before. आजकल जो है, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम वेल्थ। और वो तभी संभव हो पाता है जब आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करेंगे, और उसको करने के लिए हमें ऑपरेशन रिसर्च की आवश्यकता होती है। एंड पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट एजेंसीज मस्ट compete फॉर एवर scarce funding rupees. This means that all of us must become more productive. Volume must be increased. Consumers' demand for better products and services must be met. Manufacturing and distribution must be faster. Products and peoples must be available just in time. And now, terminology. OR means operation research. MS tends to management science. OM means operation management, and DS means decision science. All these terms are used in further discussion, so you are required that you should be noted down all these terminologies. Now applications or where the operation research is used. देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि बिजनेस क्या है? जहाँ पर बिजीनेस होती है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पर रिस्क लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे फिनोमिना को, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बिजनेस कहते हैं। उस बिजी लाइफ को, उस बिजी कॉन्सेप्ट को ईजियर बनाने के लिए, उन डिसीजंस को ईजियर बनाने के लिए हम बिजनेस के अंदर ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं, और वहाँ पर यूज करते करते कहीं ना कहीं अल्टीमेट फिजिबल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं, और वही फिजिबल सॉल्यूशन जो है आगे जा कर के ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता है। सेकंड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट के लिए भी ऑपरेशन रिसर्च एक ट्रेमेंडस रोल प्ले करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, और बहुत बड़े एरिया को मैनेज करने के लिए जितना बड़ा एरिया आपका होता है, आपकी प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी होती हैं, उतने ही कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं, उतने ही कॉम्प्लेक्स आपके फंक्शंस होते हैं। तो उन सब को ऑप्टिमम उनका यूज करने के लिए, फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूज द ऑपरेशन रिसर्च। देन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज लाइक hospitals is also used operation research to making the schedules of doctors, to controlling the queue means line जो होती है, लंबी लंबी लाइनें हॉस्पिटल्स में लगी हुई होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम जो है ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं। और आप आगे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर क्यूइंग मॉडल्स पढ़ेंगे जो कि हेल्थ इंडस्ट्री में
मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है। पोस्ट ऑफिस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम उसे यूज कर सकते हैं। हाईवे पर जहां टोल टैक्स की लंबी लंबी लाइनें होती हैं, उनको कम करने के लिए हम जो है ऑपरेशन रिसर्च का यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप उन टेक्निक्स के थ्रू जो है अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम जो है यूज कर पाएंगे। देन मिलिट्री में आपने जैसा सुना हिस्ट्री के अंदर कि सबसे पहले यूएसए ने, ब्रिटेन ने जो है इसमें इसका यूज किया था आर्मी के लिए। देन प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और ऑपरेशन रिसर्च प्लानिंग के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स का काम करता है। इट गिव्स द इनपुट टू द प्लानिंग बोर्ड और प्लानिंग पर्सन टू गेटिंग द अल्टीमेट सॉल्यूशन, टू गेटिंग द वे फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ऑपरेशन रिसर्च का यूज किया जाता है। देन प्रोडक्शन के लिए भी ऑप्टिमम प्रोडक्शन भी हमें कैसा होना चाहिए कि नो वेस्टेज, या वेस्टेज को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी अच्छी आए और जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो। उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हम जो है लॉजिस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा यूज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो ऑपरेशन रिसर्च की होती है हम उसका यूज करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं लॉजिस्टिक के या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आप ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को जो है यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें हमें क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट करने के लिए हम जो है इसमें ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हम जो है कॉस्ट को कम करने के लिए ऑपरेशन रिसर्च को यूज करते हैं। इसके बाद मार्केटिंग इंजीनियरिंग में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर ऑपरेशन रिसर्च के और ज़्यादा वाइड यूज किए जाते हैं, जिसको हम एडवांस ऑपरेशन रिसर्च का नाम भी दे सकते हैं। नाउ OR जनरल, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट साइंस, MS और OR टुडे, मैनेजमेंट साइंस ऑपरेशन रिसर्च, यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, जर्नल ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, जर्नल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी एंड एप्लीकेशंस इंटरफेयर्स, ऑपरेशन रिसर्च स्पेक्ट्रम, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन ऑपरेशनल रिसर्च, एनुअल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, सेंट्रल यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इतने तरह के ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर अब तक जो है जर्नल्स बन चुके हैं। एंड आवर प्रोसेस ऑपरेशन रिसर्च का असेसमेंट, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन। पहले आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडल्स बनाते हैं प्रॉब्लम का, यानी एब्स्ट्रैक्शंस जिसको हम कहते हैं। मॉडल्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपका मॉडल का सॉल्यूशन निकलेगा और उस सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद में आप रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक बार फिर से, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मीन्स आपको प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होती है। प्रॉब्लम आपकी अराइज हुई, आपने एब्स्ट्रैक्शंस किया, उसको समझा, आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम आखिर है क्या और कैसे सॉल्व हो सकती है। तो उसका एक ऑपरेशन रिसर्च के अंदर मॉडल बिल्ड कर लिया, यानी उसको एक नया आयाम दिया, नई तरह से उसको प्रेजेंट कर दिया। उसको जो है मॉडल को फिर हमने एनालाइज किया कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एनालिसिस के दौरान हमने मॉडल का सॉल्यूशन किया, विच इज़ आइदर फिजिबल और नॉन फिजिबल, ऑप्टिमम और नॉन ऑप्टिमम। उसके बाद जब आपको पास सॉल्यूशन आ जाता है तो आप उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, और प्रदर्शित करने के बाद में आपको जो आप चाहते हैं, अल्टीमेट सॉल्यूशन चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है। देन OR मॉडलिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है? सबसे पहले डिफाइन एन अपॉर्चुनिटी और प्रॉब्लम। जैसा मैंने अभी बताया कि आपके सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, उसको डिफाइन करना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। और प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इज नथिंग। प्रॉब्लम मीन्स अ सिचुएशन
दैट वी कैन नॉट हैंडल इजीली। जिस चीज को हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते उसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो जब प्रॉब्लम आपको होती है तो उसको आइडेंटिफाई करो कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करना होता है कि मैथमेटिकली, लॉजिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन एक्वायरिंग इनपुट इंफॉर्मेशन एंड डेटा, और फिर उसके रिगार्डिंग जो है आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देन वैलिडेट मॉडल एंड डेटा, और उसके बाद में उसकी वैलिडिटी कि हमें आखिर पहुंचना कहाँ तक है और कब कहाँ जा कर के ये हमारे लिए वैलिड होगा। देन सॉल्व एंड एनालाइज सॉल्यूशन, और उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। देन इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, और जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन दिया उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। साथ के साथ हम उसको मॉनिटर करते चले जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉलो अप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आपको आती भी है तो उसको जो है साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। OR मॉडल, the three fundamental concerns of forming operation research models are decisions open to decision makers, number 2 the constraints limiting decision choices कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, and third one is the objectives making some decision preferred to others. Now mathematical programs. Optimization models, also called mathematical programs, represents choices as decision variables and seek values that maximize or minimize objective functions of the decision variables subject to constraint on variables values expressing the limits on possible decision choices. Then feasible solution or optimal solution. A feasible solution is a choice of values for the decision variables that satisfy all constraint. जो कंस्टेंट आपने दी है उनको जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑन द अदर हैंड आर फीजिबल सॉल्यूशन दैट अचीव ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू एज गुड एज दोज ऑफ एनी अदर फीजिबल सॉल्यूशन। एंड नाउ पैरामीटर्स और आउटपुट वेरिएबल्स। पैरामीटर्स क्वांटिटीज टेकन एज गिवन, वीकली डिमांड के अकॉर्डिंग आप जो है पैरामीटर्स ले सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रिप्लेनिशमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कॉस्ट फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। कॉस्ट पर कैरेट लॉस्ट सेल्स के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। लीड टाइम के अकॉर्डिंग लिया जा सकता है, या फिर मिनिमम ऑर्डर साइज के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। पैरामीटर्स एंड डिसीजन वेरिएबल्स डिटरमाइन रिजल्ट्स measured as output variables like consumption, the functions of R, Q, D, F, H, S, L, M. And now Mortimer Middleman's formula, economic order quantity, EOQ, R equal to LD, where Q is equal to under root 2 FD divided by H, closed form solution. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो F है वो आपकी एनुअल डिमांड के बराबर होती है, डी जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, एंड एच केयरिंग कॉस्ट होती है। क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, क्लोज्ड फॉर्म एनालिटिक सॉल्यूशंस represent the ultimate in analysis of mathematical models because they provide both immediate results and rich sensitivity analysis. And our simulation, a simulation model is a computer program that simply steps through the behavior of system of interest and reports experience. Simulation model often possess high validity because they track true system behavior fairly accurately. Now MM solution, simulation for a fixed reorder point and reorder quantity. Simulation descriptive models होता है, परस्पेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन मॉडल मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग्स होते हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स यील्ड फ्यूअर एनालिटिक इंटरफेरेंसेस और कंक्लूजन्स देन परस्पेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन मॉडल because they take both input parameters
and decision as fixed. And now numerical search. Numerical search is a process of systematically trying different choices for the decision variables, keeping track of the feasible one with the best objective function value found so far. Deals with specific values of the variables, not with symbolic quantities. And now numerical part. Conclusions from numerical search are limited to the specific points explored unless mathematical structure in the model support further deductions. And now exact approximate. An exact optimal solution is a feasible solution to an optimization model that is probably as good as any other in objective function value. An approximate optimal solution is a feasible solution derived from prescriptive analysis that is not guaranteed to yield an exact optimum. Losses from settling for approximate instead of exact optimal solutions are often dwarfed by variations associated with questionable model assumptions and doubtful data. Exact optima add a satisfying degree of certainty. And now deterministic or stochastic. A mathematical model is termed deterministic if all parameter values are assumed to be known with certainty. A mathematical model is termed probabilistic or stochastic if it involves quantities known only in probability. And now stochastic simulation. Besides providing only descriptive analysis, stochastic simulation models impose the extra analytic burden of having to estimate results systematically from a sample of system realizations. And now do it yourself. What is operation research? How it is important? And question number 2, explain different kind of techniques used in operation research. And that's it from session number 1. Thank you.